بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پہ جب میں آیا. رحمان ملک میرے بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، انتہائی احترام کے ساتھ. کتنی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، لیکن قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت تھی. وہ آج میں پڑھ کے سناؤں گا اور کلیئر کروں گا. وہ آج پڑھو گے، آج بھی غلط پڑھو گے. جی پلیز نو کراس ٹاک. جی ملک صاحب آپ اپنی باری پہ بات کریں. سنو جی سنو 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 اس دن بھی سند نہیں تھا، میں نے آپ کی خاطر شرم سے خاموش رہا. اتنی بڑی تعلیم، ڈگریاں ہم شمار کریں تو گن نہیں سکتے. چھوٹی سی سورت جو چھوٹا بچہ بھی پڑھتا ہے، اگر وہ بھی غلط پڑھے تو آپ بتائیں. اعتزاز احسن صاحب بیرسٹر ہے، زرداری صاحب تشریف لائے تھے لاہور، وہاں انہوں نے خود تلاوت کی اور بالکل چیئرمین اسی طرح اس نے قل ہو اللہ کی وائلیشن کی جس طرح جناب رحمان ملک صاحب نے کی. اس سے آگے بڑھتے ہیں. وہ ریکارڈڈ ہے بھی میں نے خود سنا ہے. ابھی حال ہی میں یہ سرور جو ان کا منسٹر ہے، سنو سرور صاحب جو ان کا منسٹر ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھا، قل اعوذ برب الناس پڑھا. آپ بھی گواہ ہوں گے کہ اس نے غلط پڑھا، جو سب سے چھوٹی اور آخری صورت ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے اور قرآن کریم پر ایمان لانے والے اب اس حد تک بے خبر. تو پھر آپ مجھے بتائیں، لینن اور ماس کی بات تو ہم کرتے ہیں، موضع تم کی بات بھی کرتے ہیں، میں نے بھی اس کو پڑھا ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سوشلزم موسیٰ سے ماس تک عہد بعہد کتابیں پڑھی ہیں ہم نے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم طلب کرو چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے. اس سے منع نہیں ہے. ترغیب اس بات کی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا اور ہم مسلمان اس کے ماننے والے ہیں. جی تو ہمارے اندر کم از کم اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کتاب کو، ہم اپنے قرآن کو سمجھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے. اور اس کے بعد سنو سمجھنے کے لیے زبان ضروری ہے. زبان اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ جی اور عام طور پہ ہمارے لوگ جو ہے وہ قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ترجمے والے قرآن پڑھ کے محدث بنے، مفسر بنے اور گمراہ ہوئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اپنا گرامر ہے. چیئرمین صاحب یقین جانیے آپ عربی تھوڑا بہت جانتے ہیں. یہ جو آپ کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے اخراج، یہ صحیح ہے؟ اخراج کا معنی ہے نکالنا. اخراج کا معنی ہے نکالنا. میں نے آپ کے اسپیکر سے بحث کی، میں نے کہا یہاں یا خروج لکھو یا مخرج لکھو، نکلنے کی جگہ. سینٹ پورا تعلیم یافتہ قومی اسمبلی اخراج لکھا ہوا ہے. کہتے جی اس کے بغیر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی یونیورسٹی سے فلان طالب علم کا اخراج ہوا، یعنی اس کو نکال دیا گیا. یہاں بھی ہمارا اخراج ہوتا ہے، ہمیں یہاں سے نکال دیتے ہیں. یہ مخرج ہے، نکلنے کی جگہ ہے. تو اس لیے جناب چیئرمین اتنا تو عربی لوگ آتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں وہ پاکستان اخراج. وہ ضرورت کے وقت ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے نا کہ آپ کو نکال سکیں. آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں رضا ربانی صاحب کو، میرے بھائی، تھینک یو. اتنا مطلب سمجھ باقی ایک منٹ جی باقی جہاں تک علاقائی زبان ہے، سرو چشم علاقائی زبان پہ میں بول رہا تھا، اس دن آپ نے بولنے نہیں دیا. بڑی مہربانی. اردو ہمارا کوئی مادری زبان نہیں ہے کسی بھی علاقے کا، اس میں ہم سب مل کے بولتے ہیں، اس کی اجازت ہے، آئین میں اجازت ہے تو ہم بھی کہتے ہیں. کوئی بھی زبان ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ حساس مسائل ہیں جی، اور ان مسائل پر ہمیں بھی اعتماد میں لیا جائے، ایسی بات نہیں ہے.
रज़ा रब्बानी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, अच्छी बात है, उनकी एक राय है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसके मुकाबले में कुरान, हदीस, अरबी, जो हमारे तमाम उलूम जो है वो फ़िक़्ह सारे अरबी में है, तो इसलिए उसका लिहाज रखा जाए। बड़ी मेहरबानी होगी। और जो अब्बासी साहब ने वो किया है, मैं उसकी भरपूर तारीफ। मलिक साहब, फिर रजा साहब, फिर मिनिस्टर साहब। जी राज सर, मेरी जो मैंने ग्रेजुएशन की अरबी की सर्टिफिकेट दे दूंगा आपको। इस्लाम सबसे पहले ये कहता है कि किसी की तजलील न करो, किसी की गलती पे पर्दा डालो। आज मैं देख के हैरान हो गया हूं कि मेरे उलमा इकराम जिस अंदाज से मेरी तजलील करने की कोशिश किया है, मुझे जरूर है कि मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, ये अपोलोजाइज करेंगे थोड़ी देर बाद। जी सर इस्लाम नो डाउट मिडिल ईस्ट में आया, अरब की दुनिया में आया, लेकिन इस्लाम ने कहीं नहीं कहा कि इस्लाम के साथ अपना कल्चर बदल लो। क्या आपने अरबी तो पहन ली है? मैं भी उसी सलवार कमीज में हूं, अंग्रेजी सूट में भी हूं, और आपने बात की खराज की, वो गलत है, वो खरूज होता है। जब आप किसी को आप बाहर निकालते हैं, स्टेप लगा के उसे कहते हैं खरूज। और अरबियत कलम श्वाय श्वाय या सईदी, ये मैं जरा आपको अर्ज कर दूं, और मेरे साथ क्या कॉन्स्पिरेसी हुई। अच्छा हुआ मुझे आपने एक मौका दिया। कैबिनेट मिनिस्टर था तो हारे की बारी आती थी बोलने के लिए और तलावत करने के लिए, और रबानी साहब भी शायद उस चीज को इंडोर्स करें। मैं मानता हूं हो सकता है मुझे से गलती हुई हो, लेकिन उस दिन का वाकया मैं ये बताता हूं कि मैंने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लाम युलिद व लाम यूलद पे जब मैं आया, नहीं मेरी बात जो मेरी गलत सोच तो नहीं भाई, मैं अरबे को आप जितनी जानता। जब मैं लाम युलद कहा तो उन्होंने लाम युलद ऊपर ले आए और लाम युलद के नीचे लगा के मेरी वो आपने जो जितनी बहसें करनी थी कर दी, जितनी बहसें करनी थी कर दी, और मैं आज तक एक्सप्लेन करता रहता हूं, लेकिन वो उसका। और एक दिन मौलाना साहब और हैदरी साहब निकल रहे थे बाहर, तो इधर से मुझे ना फिर छेड़ा, मलिक साहब सीख लीजिए। मुझे समझ आ गई ये क्या कह रहे हैं। मेरे पीछे खड़े थे हामिद मीर साहब, नहीं सर दुरुस्त की होनी चाहिए रिकॉर्ड की। मेरे पीछे खड़े थे हामिद मीर साहब, वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने करत के साथ पढ़ी। उन्होंने कहा आप तो हमसे भी अच्छी ज्यादा पढ़ लेते हैं। फिर मौलाना हामिद साहब मेरी एक मीटिंग में उन्होंने छेड़ा मुझे, उन्होंने कहा जी आज ये तिलावत करेंगे। मैंने तिलावत की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। लेकिन एक चीज मैं कहूं सर, जब तक हम किसी की इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं करेंगे, शायद हम इसी तरह ही सफर करते रहेंगे। नंबर 1, आई होप इट स्टैंड्स क्लियर। नंबर 2, राजा रबानी साहब की पेट्रियोटिज्म, उनका नॉलेज अनचैलेंजेबल है। मैं उनका एक किस्म का शागिर्द भी हूं, मुझसे सीनियर है यूनिवर्सिटी से। अच्छा सब बात यह है कि आप अगर अरबिक लाते हैं, इसलिए लाते हैं कि वो आपके लिए है, इस्लाम के लिए है, वो मजहब के लिए है, वो हमारे बच्चों के लिए लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन अगर पैसों के लिए आप चाइनीज सीखते हैं तो फिर उस पर भी सोचे ना। तो अगर चाइनीज सीख सकते हैं आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो इस्लाम को बेहतर बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए हम अरबिक क्यों नहीं ला सकते? मुझे सिर्फ एक सवाल है, हम एथनिसिटी में, सेक्टेरिज्म में इतने बट चुके हैं कि आज हमारे चेहरे भी नजर आते हैं कि हम एक दूसरे के शायद काम ठीक नहीं कर रहे हैं। सर हालात वाकयात को देखें आप। इस वक्त एक बिल आया है, एक बड़ी अच्छी कोशिश की है हमारे सिराजुल हक साहब ने, और क्या मांग रहे हैं आपसे? यही कह रहे हैं कि निसाब का हिस्सा बना दो। ये सिराज साहब नहीं लाए, जावेद अब्बासी साहब लाए। आपने दिया, चलो चेंज कर लेते हैं, आप में और आप में फर्क कोई नहीं है। ये वैसे आता जी, प्लीज मलिक साहब उन्होंने जो बोला वो भी मैं उन्हीं के साथ लेके चल रहा हूं। बहरहाल आई अप्रिशिएट यू कि आप ये चीज लेके आए हैं।
तो बात यह है सर कि इसमें मैं नहीं समझता हूं ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, सुने जी। कल्चरल इशू है। मुझे बताएं कि कहां कुरान में लिखा है कि आप अपनी सारी जो रवायात हैं, जो कल्चर है, उनको भूल जाएं। आप वही शादियां वैसे ही करते हैं कि आप अरबों की तरह शादियां करते हैं? आपने देखा है कोई अरबी की तरह शादी करते हुए? हम शादियां अपने कल्चर के मुताबिक करते हैं। कल्चर को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, और अगर उसको प्रोटेक्शन देनी है लॉ के तहत, इवन देन दिस इज द हाउस। सर मैं जी, आप ठीक क्या है। बात कर रहे थे, मुझ पे अटैक कर रहे थे हैदरी साहब, मैं नहीं बोला था। मुझे मौका दे दीजिएगा अगर आपकी मैं दया चाहूं तो। बात यह सर कि हमें देखना यह है कि जब हम इस मुल्क में रहते हैं जिसका नाम और ये मुल्क वर्ष मौजूद ही इस्लाम से आया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी क्या दी, वो इस्लाम की और हिंदू की थी, और आज सारी दुनिया मानती है। वो लोग जो कहते थे कि जी 2 थ्योरी जो है जो कायदे आज़म ने दी है ये चलेगी नहीं, आज इट हैज अ प्रूवन वर्ल्ड वाइड। और आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया में कर रहा है मुसलमानों के साथ, वो आपके सामने है। अगर वो 2 वे थ्योरी ना होती, 2 नेशन थ्योरी ना होती, तो शायद हम भी किसी हिंदू के गुलाम बने बैठे होते। आज हमारा वही हाल हो रहा होता जो हमारे अप्रेस कश्मीरीज मुसलमानों का है, जो इस वक्त साउथ ऑफ इंडिया में मुसलमानों के साथ है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है जो बिल हमारे अब्बासी साहब ने दिया है कि अरबी पढ़ना अच्छी बात है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने देखिए कुरान में भी कहा है कि अगर आपको नॉलेज ले जाने के लिए जाना पड़े तो आप चाइना तक जाएं। तो जाहिर है फिर वो इवन इस्लाम कहता है कि आप दूसरी ज़बान भी सीखो, ये नहीं सिर्फ अपनी ज़बान अरबिक रखो। जब तक चाइना में जाके चाइना नहीं सीखेंगे, आप कैसे वहां पे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे? तो कहीं भी इस्लाम ने ममनू नहीं किया कि आप किसी लैंग्वेज को उन्होंने, बल्कि दिस इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। और अल्लाह ताला ने जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन अरबिक इसलिए दिया कि उस वक्त में उस रीजन में सबसे ज्यादा खराबी थी। तो आपने देखा हमारे सारे इंबिया कराम उधर ही आए हैं, वही इलाका है। आप ले ले वहां से बैरूत से लेके आप चले जाए आगे तक, आपको वही नजर आएंगे। तो बहरहाल साहब मैं बहुत जी बस अभी पुट करते हैं। एक चीज अर्ज कर दूं कि ये साहब अभी पुट कर, मैं सर साहब जान सर मैं अभी खत्म कर लूं। रजा साहब सारे हाउस उसके हक में, इसलिए अब जाने दें। जी खत्म कर लूं सर। जी जी पहले खत्म करने दें। जी मलिक साहब खत्म कर लेने। जी मलिक साहब पहले खत्म तो करें, खत्म कर लूं सर। पहले खत्म तो करने दें मौलाना साहब, सब्र कर लें। मुझे खुशी हुई है कि मौलाना साहब ने माजरत की है, और अगर किसी को शौक है इन कैमरा हो जो बाहर मुझे बुला लीजिए, मैं बहुत सी आयतें भी सुना दूंगा और मैं तफसीर के साथ बहुत सी चीजें भी बना दूंगा। मैंने थीसिस लिखी है मलिक खतून पे, 4 किताबों पे, विच इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो थैंक यू जी, थैंक यू। अगर किसी वक्त ऊंच नीच मीडिया कर देता है, एक मिनट सर सुन लेना आप। जी जी प्लीज। अगर मैं इंसान गलती का पुतला है सर, जी हो सकता है जुबान थिड़क सकती है। अगर कभी मेरी जुबान थिड़की होगी मैं कौम से माफी मांगूंगा, आज भी माफी मांगूंगा। लेकिन उस दिन मेरे साथ एक ज्यादती हुई थी, एक कंस्पिरेसी हुई थी। थैंक यू मलिक साहब। उस चैनल ने जिस तरह मेरा लामी औलाद को गुलामी औलाद करके टर्न किया, आज मैं उसकी क्लैरिफिकेशन दी है और मैं ग्रेटफुल हूं हैदरी साहब से कि उन्होंने इस चीज की माजरत की है। और बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बनते हैं। और आई होप कि इस हाउस में किसी किस्म की पर्सनल तदलील करने की कोशिश नहीं की जाएगी। आज अगर ये अपोलोजाइज ना करते, थैंक यू मलिक साहब, वॉकआउट कर जाता। जी रजा रब्बानी साहब, रजा साहब